Hello children, how are you? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Nowadays the situation is becoming more worse. So, dear children, please take care of yourself, stay home and stay safe. Today I am again back with the explanation of a new topic of our English grammar book standard 8, that is chapter number 6, conditionals. Now in this chapter, conditionals, from the topic itself you can come to know कि in this some type of condition is given, if this is happening so that will be done that way, that type of topic this one is. So before beginning the topic in this, all the topics, there are 4 types of conditional in this. In that also, in how in tenses we have some rules to follow, the same way in this chapter also you have to follow some rules to identify that 4 types. Now before beginning, I like to read some examples for you. Now first one is, rice grows well here if there is enough water. Then second one is, if I cannot meet you, I will call you before I leave the city. The third one is, if I had been present, I would have known about the quiz competition. Then the fifth one is, if they had gone to the grocery store, they would have bought some flowers. Now here are some examples given over here. Before beginning with the explanation of the first type, in this here it is given the words in the bold are conditional clauses. Now here which I read the sentences, in that you can see some ये dark किए हुए letter words है, वो सब कौन से हैं, उसको कंडीशनल क्लॉजेस कहा जाता है. एंड कंडीशनल क्लॉज हमेशा इफ से स्टार्ट होता है. सो कंडीशनल क्लॉजेस आर अ टाइप ऑफ एडवर्बियल क्लॉज. एक टाइप का, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द एडवर्बियल क्लॉज. सो एक टाइप का एडवर्बियल क्लॉज है. दे एक्सप्रेस कंडीशंस, वो कंडीशंस बताते कि अगर ये होगा तो वो हो सकता है ऐसे. दे आर सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंडीशन. नाउ ये कौन से टाइप के एडवर्बियल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट, मतलब उसको किसी और फ्रेज किसी और सेंटेंस की ज़्यादा और वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. सो दे आर ऑल्सो नोन एज इफ क्लॉजेज. ऐसे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑल आर बिगनिंग, द बोल्ड लेटर्स आर बिगनिंग विद द वर्ड इफ. सो ये इसको क्या दूसरा नाम कहा जाता है, इफ क्लॉजेस, बिकॉज वी फ्रीक्वेंटली यूज इफ टू एक्सप्रेस अ कंडीशन. क्योंकि हमेशा ये कंडीशन एक्सप्रेस करने के लिए हम किससे स्टार्ट करते हैं, if से. See the example it is given over here. If it is sunny tomorrow, we will go for a picnic. Now before beginning with its type, I would like to show you a video related to this. In this there are 4 types, that is, this is the first type, the zero conditional. So for explaining the zero conditional, let's watch a video first, then I'll explain you in detail. So let's begin. Using Powtoon. So dear children, as you watch the animated video, I hope कि आपको थोड़ा बहुत कुछ उसमें समझ में आया होगा कि उसका क्या फॉर्मेट है, कैसे वो फॉर्म होता है और किस लिए वो यूज़ होता है. ज़ीरो कंडीशनल, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल, वो है ज़ीरो कंडीशनल. अब इसमें 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. द फर्स्ट वन इज़, इफ़ आई डू नॉट स्लीप ऑन टाइम माई हेड एक्स. And the second example is, ask Minnie to guide you
if you don't know the way. अब इसमें we use the zero conditional if clause. हम कब यूज़ करते हैं? to show that something will definitely result because of something else. मतलब वो श्योर है कि वो होने वाला है, जनरल ट्रूथ है कि अगर कुछ होगा तो दूसरी उसका इफेक्ट तो होगा ही. So we use it for general truths when an event always occurs and when something is considered standard practice. Now इसीलिए हम लोग ये ज़ीरो कंडीशनल किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर जनरल ट्रूथ्स, मतलब वो होगा ही ऐसे. अब उसका जो फॉर्म है, एज यू सॉ इन द एनिमेटेड वीडियो, कि कैसे वो फॉर्म होता है ज़ीरो कंडीशनल. इन दैट वर्ब इन इफ क्लॉज के साथ जो टेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस है, तो वो वर्ब में जो टेंस होगा वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा. वर्ब जो मेन क्लॉज में जो वर्ब होगा वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा. इफ क्लॉज के साथ जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस, तो मेन क्लॉज के साथ जो वर्ब है वो भी प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. और सेकंड ऑप्शन क्या है कि इफ क्लॉज के साथ जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस है, तो जो वर्ब मेन क्लॉज में है वो इंपरेटिव भी हो सकता है, जैसे कमांडिंग टाइप, कमांडिंग, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वैसे. सो उससे रिलेटेड ये एक एक्सरसाइज है. फर्स्ट वी विल डू दैट सो द आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल. अब इसमें कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सूटेबल वर्ब्स. अब ये सेंटेंस में एक वर्ब दिया हुआ है, दूसरा वर्ब आपको कंप्लीट करना है जो उसके साथ सूट होता है उस हिसाब से. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी बीन डन. If no one drives, no one के लिए we are using the word drives you to the station, take a bus to Howrah station. तो यहाँ पे देखो if clause में present tense है verb, तो यहाँ पे भी take present tense आया according to the subject. So next question, let's see. It is easier to do that if you dash have practice. ईजियर होगा, उसके साथ डू अगेन प्रेजेंट टेंस है, तो इफ़ यू उसके साथ जो वर्ड होगा वो भी प्रेजेंट टेंस में ही आपको लिखना है, हैव. देन द थर्ड वन, मदर गेट्स अनॉयड इफ़ आई डू नॉट क्लीन माई रूम. अब इसमें भी अनॉयड है, गेट्स है वो वर्ब है, मदर के साथ गेट्स वर्ब है. सो ये जो वर्ब मदर के साथ है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे भी आई डू नॉट, यहाँ डू प्रेजेंट टेंस आ गया तो उसके साथ डू नॉट क्लीन, ये भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा. देन फोर्थ वन, प्लांट्स डाई इफ दे आर नॉट वाटर्ड. अगेन डाई, प्लांट्स प्लूरल सब्जेक्ट था तो विदाउट एस का वर्ब यूज़ किया है डाई यहाँ पे, तो उसके साथ भी यहाँ पे दे के साथ वी आर यूजिंग आर नॉट वाटर्ड, ये भी प्रेजेंट टेंस में हमने यूज़ किया है. देन अगेन इफ़ यू कीप द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर इट डज नॉट कर्डल. नाउ यहाँ पे जो मेन क्लॉज है उसमें डज प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, तो यू के साथ वी विल यूज़ द वर्ड कीप, दैट विल बी ऑल्सो इन प्रेजेंट टेंस. नाउ सी द लास्ट वन, मिस वर्मा स्कोल्ड्स अस इफ़ वी डू नॉट कंप्लीट आवर होमवर्क. अगेन मिस वर्मा के साथ स्कोल्ड्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो विथ एस वाला वर्ब हमने यूज़ किया है प्रेजेंट टेंस वाला. सो इसके साथ भी वी डू नॉट कंप्लीट, हम लोग वही वर्ड वैसे ही प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल इज़ द फर्स्ट कंडीशनल. अब इसमें इन दिस ऑल्सो बिफोर बिगनिंग विद दिस लेट्स वॉच अ वीडियो सो दैट द आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल.
So dear children, as you saw the animated video, the idea is, I think so it is clear to you. I'll explain you it in detail. Now the second type is the first conditional. उसे कहते हैं first conditional. Now let's look at the examples over here. First one, if Samir is free, he will join us for dinner. And the second one is, you should reach Jammu banquets if you continue straight on this road. अब इसमें क्या चेंज है, जैसे जीरो कंडीशनल में दोनों पार्ट में प्रेजेंट टेंस यूज होता था, इन दिस द फॉर्मेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट. वी यूज द फर्स्ट कंडीशनल और टाइप 1 इफ क्लॉज. अब इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, टाइप 1 इफ क्लॉज, टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन दैट इज लाइकली टू हैपन, मतलब वो हो सकता है शायद. इट एक्सप्रेस एंड ओपन कंडीशन और पॉसिबिलिटी, शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताता है. दैट टाइम वी यूज this first conditional or type 1 if clause. Now we use it to give permission, commands and advice and to denote ability. हम लोग वो किस लिए यूज़ करते हैं, परमिशन देने के लिए, कमांड्स देने के लिए, कोई किसी को एडवाइस देने के लिए, और हम कुछ कर सकते हैं वो एबिलिटी दिखाने के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर लाइकली टू अकर, मतलब वो शायद हो सकती है फ्यूचर में. अब इस इन द दिस टेबल उसका फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इफ क्लॉज के साथ जो वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, तो आप फर्स्ट कंडीशनल में अगर वो सेंटेंस बना रहे हैं तो इफ क्लॉज में वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस में, और उसका जो मेन क्लॉज होगा उसमें वर्ब के साथ विल लगेगा. विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव, मतलब उसके साथ विल प्लस वर्ब, ऐसे फॉर्मेशन होगा. और अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसके साथ आप यूज करोगे मॉडल वर्ब्स या इम्परेटिव्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उससे. नाउ इन दिस द वर्ड्स आर गिवन इन जम्बल्ड फॉर्म, इसमें दिए गए हैं. आपको सेकेंड पार्ट रीअरेंज करना है. फर्स्ट पार्ट तो दिया हुआ है ऑलरेडी, सेकेंड पार्ट आपको रीअरेंज करना है. यहाँ पे इन द फर्स्ट वन इफ क्लॉज दिया हुआ है, आपको मेन क्लॉज को अरेंज करके लिखना है. सो फर्स्ट वन इज इफ प्रिया सिंग्स वेल, इसको आप रीअरेंज करोगे. नेक्स्ट, शी विल विन द कॉम्पिटिशन, मतलब यू कैन सी हियर कि यहाँ इफ क्लॉज में जो वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो उसका मेन क्लॉज में विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव, मतलब विल प्लस वर्ब हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. इफ इट इज सनी टुमारो मॉर्निंग, अब इसमें उसका सेकेंड पार्ट आप कैसे लिखोगे, वी विल प्ले फुटबॉल, विल प्ले करके. ठीक है. देन द थर्ड वन, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, अगेन इसमें डू नॉट ये है प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें विल के साथ, और नेगेटिव है तो नेक्स्ट पार्ट भी नेगेटिव ही होगा. यू विल नॉट डू वेल इन द एग्जाम्स, तो इसमें भी विल नॉट और उसके साथ ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब आ गया. देन द फोर्थ वन इज वी विल कैंसल आवर ट्रिप टू द जापानीज गार्डन, कैंसिल करेंगे विल. अब इसमें मेन क्लॉज दिया हुआ है, दिस इज द मेन क्लॉज, विल के साथ इन्फिनेटिव. तो अब नेक्स्ट पार्ट होगा वो इफ क्लॉज हो जाएगा. तो इफ इट रेन्स ऑन संडे, अब इसमें भी देखो यहाँ पे विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव आया, तो उसका जो इफ क्लॉज है वो होगा प्रेजेंट टेंस में. नाउ द फिफ्थ वन इज इफ ही इज नॉट फीलिंग वेल, अगर यहाँ पे दिया हुआ है नॉट इज और नॉट, दैट इज नेगेटिव पार्ट एंड ये वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें विल प्लस गो हो जाएगा, तो ही विल गो टू द डॉक्टर. नाउ सिक्स्थ वन, इफ माई फ्रेंड्स आर नॉट बिजी, इन दिस अगेन आर नॉट इट इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस, तो उसका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में, जैसे वी विल गो टू द म्यूजियम टुडे. देन सेवेंथ वन, इफ यू डू नॉट हरी, अगेन ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो विल के साथ बेयर इन्फिनेटिव मेन क्लॉज में आ जाएगा, यू विल मिस द ट्रेन. अब इसमें ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अगर जीरो कंडीशनल है तो दोनों पार्ट में प्रेजेंट टेंस यूज होगा. अगर फर्स्ट कंडीशनल है तो एक पार्ट में इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस एंड उसके साथ जो मेन क्लॉज होगा उसमें विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप. थर्ड टाइप इज द सेकेंड
conditional. Now again, before starting this, I'll show you an animated video so that the idea will be more clear to you all. Using Powtoon. So dear children, I hope you would have understood by watching the animated video. Let's begin with the example. She would try to help her friend if she knew the truth. The second one is, if I had an umbrella, I would not get wet. Now in this, we use this second conditional, and what is its other name? उसका दूसरा नाम है type 2 if clause. To talk about a situation that is unlike to happen or imaginary, मतलब वो हो नहीं सकता बट हम लोग इमेजिन करते हैं, वैसे टाइप की सिचुएशंस में वी यूज द सेकेंड कंडीशनल. इन दिस उसका फॉर्मेशन जैसे होता है, द पास्ट टेंस इज द टाइप 2 इफ क्लॉज. वो पास्ट टेंस में यूज होता है. एक्सप्रेसेस एन अनरियल और इम्प्रॉबेबल कंडीशन. वो रियलिटी में नहीं होगी वो कंडीशन. इट इज अनलाइकली दैट इट विल बी फुलफिल्ड. हम लोग ऐसे मानते हैं कि वो हो सकता है. उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे आई टोल्ड यू इन दैट कि जीरो में दोनों क्लॉजेज में प्रेजेंट टेंस यूज होता है. फिर फर्स्ट में एक इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस होगा और मेन क्लॉज में विल प्लस बेयर इन्फिनिटिव मतलब विल प्लस वर्ब होगा. अब इन दिस सेकेंड कंडीशनल या टाइप 2 क्लॉज में जो इफ क्लॉज होगा उसमें पास्ट टेंस वर्ड होगा, V2 फॉर्म वर्ड. वो वर्ब होगा वो V2 फॉर्म में होगा. एंड जो मेन क्लॉज में होगा वो उसका फॉर्मेशन होगा वुड प्लस बेयर इन्फिनिटिव मतलब वुड प्लस वर्ब होगा. और नेक्स्ट उसमें आप ये दूसरे दो वर्ड्स भी कुड और माइट भी यूज कर सकते हैं. इफ क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, मेन क्लॉज में इट विल बी कुड वुड माइट प्लस वर्ब, बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब. सो इसका फॉर्मेशन है, इतना ही आपको याद रखना है कि इफ क्लॉज V2 फॉर्म वर्ब एंड मेन क्लॉज वुड प्लस बेयर इन्फिनिटिव. नाउ in the next exercise related to this second conditional, you have to do the matching according to the situations given over here. इसमें फर्स्ट वन है इफ आई वेयर इन हैदराबाद, उसके साथ कौन सा ज्वाइन होगा? आई वुड बी विथ माई फैमिली. इसमें देखो वेयर दिया है पास्ट टेंस में, उसके साथ हमने जो रिलेट किया उसमें कौन सा वर्ड यूज हो गया? वुड, और उसके साथ बी मतलब वर्ब. नाउ द सेकेंड वन इज इफ ही हैड हर एड्रेस, उसके साथ कौन सा मैच होगा? ही वुड सेंड हर अ
गिफ्ट। अगेन सी, इसमें हैड था पास्ट टेंस, उसके साथ कौन सा यूज हुआ है, वुड प्लस वर्ब। नाउ द थर्ड वन इज आई वुड गो टू द सिनेमा, उसके साथ आंसर है इफ आई हैड सम मनी। अब देखो दिस इज द मेन क्लॉज, तो वुड के साथ वर्ब और उसके साथ इफ क्लॉज है उसमें पास्ट टेंस। देन द फोर्थ वन इज इफ इट वेयर वार्मर, उसके साथ फोर्थ का आंसर है वी वुड प्ले आउटडोर्स। अब इसमें इफ क्लॉज में वर पास्ट टेंस है एंड उसके साथ यहाँ वुड प्लस वर्ब आ गया। देन द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, इफ यू स्टार्टेड अर्लियर, उसके साथ यू कुड गेट देयर इन टाइम। अगेन इसमें स्टार्टेड पास्ट टेंस में एंड मेन वर्ब में कुड प्लस वर्ब। देन द सिक्स्थ वन, आई वुड बी ग्रेटफुल। अब इसमें आई वुड बी ग्रेटफुल मेन क्लॉज है तो वुड और वर्ब आ गया, उसके साथ यहाँ मैच होगा इफ यू हेल्प्ड मी, यहाँ पास्ट टेंस आ गया। देन द सेवेंथ वन, इफ द वाटर वॉज क्लीन, अगेन वॉज पास्ट टेंस आया, उसके साथ मैच होगा एवरीवन वुड ड्रिंक इट, वुड के साथ वर्ब। देन द एट्थ वन, इफ दे हैड इनफ मनी, अगेन हैड आ गया पास्ट टेंस, उसके साथ मैच होगा दे वुड बाय अ हाउस, वुड प्लस वर्ब। In this, dear students, if you understand once the rule which is there, so easily you can form the sentence and you can identify the conditionals also. Now the last type, fourth type is the third conditional. In that also one rule you have to follow. So before starting this explanation of third conditional, I like to show you a video related to the third conditional. So let's watch that video. Welcome to this new online lesson. In this case, we're going to talk about the third conditional clauses. They are used for talking about hypothetical past events. It's the way we imagine how things could have been different in the past. How can we form them? Well, we need if plus past perfect plus could have plus the main verb in its past participle form. Here we are some examples. If you had worked harder, you couldn't have failed the exam. Here's another one. If you hadn't fallen asleep, you wouldn't have been late. As final conclusions, we may say that it's used for talking about past events that didn't happen. This is impossible past conditions. Sometimes we can also use a modal verb instead of could have. Thank you for your attention and see you tomorrow. Bye. So dear children, as you saw in that video how the third conditional is formed, let's see the example for that. In that, if I had answered correctly, our team would have won the quiz. The second example is we would have completed the work if we had more time. Now in this, what is the difference? Now we use this third conditional and what is the other name उसका क्या है? Type 3 if clause to refer to an unreal condition in the past. मतलब वो हुआ ही नहीं है और हम उसके बारे में सोच रहे पास्ट में. It implies that if things had happened differently in the past, the results would have been different. कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो उसका रिजल्ट अच्छा होता या खराब होता, जो भी होता उसके बारे में हम सोचते हैं. तो in that the past perfect tense is in the type 3 if clause refers to situation in the past. ये किसको रेफर करता है? जो situations past में हुई है, पास्ट में आप सोचते हो कि हो सकती है, एंड इज देयरफॉर ओनली हाइपोथेटिकल, मतलब हम उसके बारे में सिर्फ सोचते हैं. अब उसका फॉर्मेशन कैसा है? इन द थर्ड क्लॉज एक ही रूल अप्लाई होता है, जैसे कि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड प्लस V3 फॉर्म, और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 फॉर्म होना चाहिए. दिस इज द रूल
for third conditional. फिर in that we can use if clause at the beginning or at the end of the sentence. मतलब if clause हम लोग starting में भी use कर सकते हैं या second part में भी use कर सकते हैं. Then if it is the at the beginning it is always followed by a comma. अगर हम if clause को starting में use कर रहे हैं तो वो main clause के साथ उसको differ मतलब separate करने के लिए हमें बीच में comma लगाना होता है, जैसे इसमें किया हुआ है. अगर we are starting the sentence if clause से कि if the chairman approves the plan the project will begin, इसमें हमने ये मेन क्लॉज को उससे सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया. बट अगर हम ये इफ क्लॉज को सेकेंड पार्ट में ले जाते हैं और स्टार्ट होता है मेन क्लॉज से तो उसमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. द प्रोजेक्ट विल बिगिन इफ द चेयरमैन अप्रूव्स द प्लान. अगर इफ क्लॉज सेकेंड पार्ट में आ रहा है तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये रूल चारों कंडीशनल में अप्लाई होगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज of this which is given over here. So you have to complete these sentences with would have or wouldn't have. अगर negativity है तो wouldn't have and अगर positivity है तो would have. In that the first question is already been done for you कि if the wind had not been so strong the clouds wouldn't have blown out about everywhere. अब इसमें देखो यहाँ had not दिया हुआ है सो हम आंसर में भी नेगेटिव यूज़ करके बना रहे हैं. देन अब इसमें रूल क्या है कि हैड नॉट बीन मतलब हैड प्लस V3 फॉर्म दिया हुआ है सो उसका जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड हैव और ये V3 फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है. वुड हैव उसका फॉर्मेशन क्या है वुड हैव प्लस V3 फॉर्म. अब इसमें सेकेंड वन आई डैश कॉल्ड, इसमें V3 फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन टू यू इफ आई हैड योर टेलीफोन नंबर. अब इसमें नेगेटिविटी नहीं है तो आप इसमें ऐड करोगे वुड हैव. देन इफ वी हैड कॉट द फर्स्ट बस, अब इसमें हैड प्लस V3 फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन तो आप इसमें लगा दोगे कुड हैव. इसमें वुड हैव कुड हैव माइट हैव आप तीनों यूज़ कर सकते हो. जैसे सेकेंड कंडीशनल में हम लोग वुड कुड और माइट यूज़ करते हैं. सो कुड हैव रीच द सिटी मच अर्लियर. देन fourth one if she had come to my party, again had plus V3 form is given. आपको यहाँ पे would have V3 form is already written over here. Now the fifth one is we could have gone for a picnic if it had been a pleasant day. Again if के साथ had plus V3 form दिया हुआ है तो main clause में could have और V3 form is already given to you. Now the sixth one is if she had listened to me, again had plus V3 फॉर्म दिया हुआ है तो आपको नेक्स्ट पार्ट में V3 दिया हुआ है खाली आपको would have लगाना है. सो इस एक्सरसाइज में आप would have, could have और might have तीनों वर्ड्स के यूज़ कर सकते हैं. मेड द करेक्ट डिसीजन. देन द सेवेंथ वन इज इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड हार्डर I might have performed better in the show. Again had plus V3 फॉर्म यहाँ पे if clause के साथ आएगा and आप दूसरे पार्ट में मेन clause में might have plus ये V3 फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है. Now the last one is if I had known earlier, again had known आ गया had plus V3 फॉर्म तो नेक्स्ट पार्ट में I would have brought all my notes with me. सो ये वुड हैव लगा देना है. ये V3 फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है. सो डियर चिल्ड्रन इन दिस ओनली द रूल्स यू हैव टू रिमेंबर. खाली वही याद रखना है कि कौन से क्लॉज में क्या रूल अप्लाई होते हैं. उस हिसाब से आगे के एक्सरसाइज में यू कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो. आप सेंटेंस भी चेंज करके बना सकते हैं वैसे. एंड दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इट इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. पेंसिल से लिखना है टेक्स्ट बुक में ही. जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है उसी तरह से आप लोग को लिखना है पेंसिल से. So dear children, I hope you would have understood the rules and the part which I have explained the 4 types of conditional. So thank you dear children.